Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 11.3. Exercise 8.3. Exercise 8.3. In which exercise 8.3 अपन स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। ओके, अब बिफोर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले वी आर स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब sum according to sum of angle, according to sum of angle types of angle according to sum of angle। ओके, तो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सेकंड इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। And third is reflex angle। ये टोटल बेसिक थिंग्स आपको 9th क्लास में हमने बताई। ओके, तो when sum of two angles is equal to 90 degree, then they are complementary angle to each other. If sum of two angles is equal 90 degree, sum of two angles is equal 90 degree, then they are supplementary angle to each other. If you find any complementary angle of any angle, then you subtract from 90 degree। okay, it means two angles का सम है और 1 की वैल्यू फाइंड है, तो उस वैल्यू को आप 90 में से लेस कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सेकंड एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। 2 थिंग्स का ऐड होए और 1 की वैल्यू है, तो आप उस सम में से उस वैल्यू को लेस कर दोगे तो जो अदर एंगल्स है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 80, तो tan को आप 90 में से लेस कर दो 80 आ जाएगा, और 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 और 10, मतलब 80 को आपने 90 में से लेस कर दिया 10 आ गया। सिमिलरली 20 का हो गया 70 और 70 का हो गया 20। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 एंड 60 का हो गया 30। 1 का हो गया 89 और 89 का हो गया 1। 5 का हो गया 85 एंड 85 का हो गया 5। क्लियर? तो these are complementary angle to each other। okay, these are complementary angle to each other, these are complementary angle to each other, these are complementary angle to each other। ये complementary angles के एग्जांपल हो गए। now if sum of two angles is equal 180 degree, sum of two angles is equal 180 degree, then they are supplementary angle to each other, then they are supplementary angles to each other। if you want supplementary angle of any angle, then you subtract from that angle from 180। okay, अगर आप किसी भी एंगल्स का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना चाहते हो तो आप 180 में से उसको लेस कर देना। जैसे 100 का क्या हो जाएगा,
80 एंड 80 का क्या हो जाएगा 100. दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर. 50 का क्या हो जाएगा 130 एंड 130 का क्या हो जाएगा 50. ओके. 20 का हो जाएगा 160 एंड 160 का 20. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल. इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल 360 डिग्री. इफ सम ऑफ two angles is equal 360 degree, then they are reflex angle of each other. If you want reflex angle of any angle, then you subtract that angle from 360 degree. It means 200 का हो जाएगा 160 and 160 का हो जाएगा 200 और 60 का हो जाएगा 300 and 300 का हो जाएगा 60. ओके. सो दीज आर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ईच अदर. ये मैंने आपको जनरली बता दिया और ये आपके इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा. कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले के लिए अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके. तो इसके बारे में ये नॉलेज मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ सम ऑफ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर sin theta, second is cos theta, third is tan theta, fourth is sec theta, cot theta. Cot theta, fifth sec theta, sixth cosec theta. Okay. Now, so sin and cos are complementary to each other. Tan and cot are complementary to each other, and sec and cosec are complementary to each other. Okay. Relation between sin and cos from complementary formula. Relation between tan and cot from complementary formula, and relation between sec and cosec from complementary formulas. Okay. So first, sin 90 minus theta is equal cos theta, and cos 90 minus theta is equal sin theta. ओके. तो इससे टू फॉर्मूले गेन हो गए अपने को. sin 90 minus theta is equal cos theta, and cos 90 minus theta is equal sin theta. Similarly, third number, tan 90 minus theta is equal cot theta, and cot 90 minus theta is equal tan theta. Similarly, fifth and sixth कैसे बनेंगे? sec 90 minus theta is equal cosec theta, and cosec 90 minus theta is equal sec theta. क्लियर? तो ये स्मॉल सी एक्सरसाइज है और इन फॉर्मूलाज पे क्या है बेस्ड है.
तो ये हो गया 8.3 का बेसिक। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3। ओके, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज। ओके, अब इसको अपन रिवर्स यूज करेंगे, यानी कोस ये इसके इक्वल है तो कोस थीटा को अपन क्या राइट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। कोट थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। एंड सेक थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, तो एक्सरसाइज 8.3 स्मॉल सी एक्सरसाइज है और इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो नाउ क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट्स कितने हैं, 4। क्लास 10th। ओके, एवेलुएट यानी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोस, और 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 72 है। तो साइन से क्या किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, कोस की, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कोस है। और 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस 18, तो 72 हो गया। तो इसको अपन चेंज कर देंगे। इट मीन साइन थीटा को अपन, थीटा की वैल्यू क्या है, 18, तो साइन थीटा को अपन क्या राइट कर देंगे, कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 18 है। ओके, और कोस 72। अब कोस 90 माइनस थीटा एंगल्स में ऑपरेशन है, वो अपन ऑपरेट कर सकते हैं। तो कोस 90 माइनस 18 क्या हो गया, 72 अपॉन कोस 72। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। ओके, ये तो है एक पैटर्न। और इस पैटर्न को अपन न्यूमेरिक जो एंगल है उनमें एक और मेथड भी यूज कर सकते हैं, और सेकंड मेथड। बट ये सेकंड मेथड है वो ओनली ऑन किस में यूज कर सकते हैं अपन, वो यूज कर सकते हैं ओनली यहाँ पे न्यूमेरिक एंगल्स है उसमें। और ये जो फर्स्ट मेथड है ये टोटल क्वेश्चन में चाहे एंगल्स न्यूमेरिक फॉर्म में हो और चाहे अलजेब्रिक फॉर्म में हो। क्लियर। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा को क्या राइट किया, ये फॉर्मूला ऑपरेट किया, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 18, यहाँ पे भी क्या है, 18। अगर लेटर्स सेम है तो उनकी वैल्यूज भी क्या होगी, सेम। हमने और कुछ नहीं किया इस स्टेप में, साइन थीटा को राइट किया कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 18, यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। ये फॉर्मूला ऑपरेट किया है। ओके, तो मैं ये फुल आपको डिटेल से बता रहा हूँ। नाउ सेकंड पैटर्न क्या है, जैसे इसी क्वेश्चन को अपन सेकंड पैटर्न से करें, साइन 18 अपॉन कोस 72। साइन
18 है, तो अपन क्या करेंगे, साइन एज इट इज, अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं कर रहे। 18 को अपन क्या राइट कर सकते हैं, 90 माइनस 72। व्हाट इज दिस, दिस इज 18। अपने कुछ नहीं किया इस स्टेप में, यानी साइन का साइन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो एंगल्स चेंज हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, 72 बनता। मतलब यहाँ पे 18 को क्या राइट किया कि 90 में से क्या लेस करें कि 18 आई, तो 19 में से क्या लेस कर दो, 19 में से 72 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 18। अभी कोई फॉर्मूला ऑपरेट नहीं किया हमने, और cos 72 एज इट इज। ओके, अब फॉर्मूला ऑपरेट कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, cos थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 72, cos 72, ये एज इट इज है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो साइन का साइन 90 में से क्या लेस करूँगी, 18 आई, 72 लेस करो। ओके, 72 लेस किया तो 18 आ जाएगा, 18 को ही राइट किया ना ये। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया हमने राइट किया साइन 90 माइनस थीटा को क्या राइट कर दिया, कोस थीटा, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 72 है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 72 है यहाँ पे। ओके, तो कोस 72 अपॉन कोस 72 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1। ये पैटर्न है, इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है इस वे में, और इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है रिवर्स। तो अपन इस मेथड से सारे क्वेश्चन करेंगे। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 18, तो इसको क्या राइट कर दिया, न्यूमरेटर में चेंजिंग की है हमने, cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 18 है, तो cos 90 माइनस 18। अब cos एज इट इज 90 माइनस 18, यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेट करके सब्ट्रैक्शन का हमने वैल्यू फाइंड की, 90 माइनस 18 कितना आ गया, 72। cos 72 से cos 72 क्या हो गया, कैंसिल। तो हम कौन से मेथड से करेंगे, अब ये मेथड फेल कब हो जाएगा, जैसे साइन 4a आ गया, तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि साइन का साइन 90 में से क्या लेस करें कि 4a आई, तो इस एल्जेब्रिक एंगल है यहाँ पे न्यूमेरिकल एंगल है, तब ये मेथड चल गया। बट एल्जेब्रिक एंगल में कौन सा मेथड यूज होएगा, यही मेथड यूज होएगा। तो यहाँ पे आप क्या है कि स्टॉप हो जाए क्वेश्चन, साइन का साइन 90 में से क्या लेस करें कि 4a आई, तो अपने को वो पता नहीं है। तो इस वे में अगर इस एंगल जो है वो एल्जेब्रिक कंडीशन में आ जाए तो ये मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये मेथड है, ये परमानेंट, चाहे एंगल न्यूमेरिक हो और चाहे एंगल एल्जेब्रिक हो। तो ये परमानेंट मेथड कुछ टीचर इस वे में करवा देते हैं और कुछ टीचर इस वे में, बट ये क्या है, परमानेंट मेथड है। ओके, नाउ तो इसके 4 पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, 4। तो सेकंड पार्ट क्या है, इसकी सिमिलर है, tan 26 अपॉन cot 64। तो tan से क्या गेन हो सकता है, cot, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot होता है, और 26 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 64। तो tan से cot गेन हो जाएगा, 26 से क्या गेन हो जाएगा, 64। तो अपन इसको न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 26। tan थीटा को हमने राइट किया cot 90 माइनस थीटा, और मुंह से जब थीटा आएगा तो क्या आएगा, 26। ओके, और ये एज इट इज, एक को चेंज करना है, एक कैंसिल हो जाना है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला ऑपरेट किया, यहाँ पे हमने tan थीटा को राइट किया, tan थीटा इज इक्वल cot 90 माइनस थीटा। इस फॉर्मूले से हमने ये भी ब्रैकेट हो गया, cot
90 में से 26 लेस हो गए, कोट 64 अपॉन कोट 64, कोट 64 से कोट 64 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर आ गया 1। दिस इज योर आंसर। ओके, थर्ड पोर्शन, कोस 48 माइनस साइन 42। कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन 48 का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 42। तो कोस से क्या बन जाएगा, साइन, और 48 से क्या बन जाएगा, 42। तो अपन इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कोस थीटा को हमने राइट किया साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 48, माइनस साइन 42 एज इट इज। वन पार्ट को क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको हमने राइट कर दिया, कोस थीटा को राइट किया साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 48 है। कोस थीटा को अपन ने राइट किया साइन एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला ऑपरेट किया। तो साइन एज इट इज 90 माइनस 48, ये सब्ट्रैक्शन कर दिया 42 आ गया, माइनस साइन 42, ये प्लस का साइन 42 एंड दिस इज माइनस साइन 42, ये टोटल में टोटल लेस हो गया तो क्या आ गया 0। दिस इज योर फाइनली आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, इसके सिमिलर है, कोसेक 31 एंड माइनस सेक 59। तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, सेक, यानी इससे सेक गेन हो जाएगा। और 31 का क्या होता है, 90 माइनस 31, कॉम्प्लीमेंट्री 31 का आएगा 59। ओके, 90 में से लेस कर लिया 31 को, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 59 होएगा 31 का। तो इससे अपने को क्या गेन हो सकता है, सेक एंड 59। तो इसको अपन चेंज कर देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाना है। तो इसको क्या राइट करेंगे, कोसेक थीटा को राइट किया सेक 90 माइनस थीटा, और वैल्यू ऑफ थीटा 31, माइनस सेक 59, फॉर्मूला ऑपरेट हो गया, कोसेक थीटा इज इक्वल सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये बिग ब्रैकेट। अब सेक एज इट इज ऑपरेशन ऑपरेट कर दो माइनस का, तो ये आ जाएगा 59 माइनस सेक 59 एज इट इज। सेक 59 में सेक 59 कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया ना, तो ये 0 आंसर। टोटल इसी वे में क्वेश्चन होंगे। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, और एंगल्स हैं, एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर second is show that, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट्स हैं, और प्रूव करना है अपने को। शो दैट पार्ट फर्स्ट इज tan 48 okay into tan 23 into tan 42 into tan 67 ओके इज इक्वल 1 प्रूव करना है। तो tan से कोट एंड 42 से क्या बन जाएगा, 48 से 42, यानी इससे बनेगा कोट 42, उस कोट 42 को अपॉन रिवर्स रेसिप्रोकल फॉर्मूले से 1/tan 42 राइट कर देंगे, तो ये tan 42 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स इसको अपन चेंज नहीं करेंगे, और इससे क्या बनेगा, tan 23 से बनेगा, tan से कोट और 23 से 67 ओके, कोट 67 बनेगा
उसको अपन 1/1067 राइट कर देंगे और 1067 से 1067 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी अपन चेंज नहीं करेंगे। तो अपन ओनली इन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे। ओके, टेकिंग LHS आप ले लो, वो तो सॉल्व भी है। ओके, RHS तो 10 या आप डायरेक्ट उसके इक्वल में या आप चलो LHS ले लेते हैं, तो इसको अपन रीराइट कर दिया 1048 1023 इंटू 1042, इनके मिडल में मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पे। ओके, बट टैग करने की नीड नहीं है। 1067 इन टू को ही चेंज करेंगे अपन, तो इसको राइट किया tan थीटा cot 90 माइनस थीटा और वैल्यू ऑफ थीटा 48। tan थीटा इसको राइट किया cot 90 माइनस थीटा, हियर वैल्यू ऑफ थीटा 23, और इन टू को चेंज नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाने हैं। 1042 और 1067। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? tan थीटा को अपन ने राइट किया cot 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ cot एज इट इज 90 माइनस 48 42 आ गया, cot 90 माइनस 23 ये आ गया, cot एज इट इज 90 में से लेस कर दिया तो 67, और 1042 एज इट इज 1067 एज इट इज। अब इसको अपन चेंज करेंगे रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, रिवर्स क्या होता है? 10, तो 1/10 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 42। इसको अपन ने राइट कर दिया 1/10 67, और ये न्यूमरेटर में ही है 42 और ये 10 न्यूमरेटर में ही है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 1 1 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ओनली 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होने हैं, तो क्या आ गया 1 ही आ गया। तो LHS टैग करके हमने RHS के इक्वल ले आए अपन, तो LHS इज इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? cot थीटा को क्या राइट कर दिया? cot थीटा को अपन रेसिप्रोकल फॉर्मूले से 1/10 थीटा राइट कर सकते। ओके, तो इससे क्या आएगा cot 42, जैसे ये आया 10 से cot, इससे 42, cot 42 को रेसिप्रोकल फॉर्मूले 1/10 42, और अपॉन में है 10 42, और ये क्या है न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इससे cot 67 आएगा, और cot 67 को 1/10 67 राइट कर देंगे, 1067 से ये 1067 कैंसिल हो जाएगा, तो इनको अपन चेंज नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन कोई भी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टारगेट सेट होता है। नाउ पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 38 and cos 52 minus sin 38 and sin 52 इज इक्वल प्रूव करना है 0। ओके, तो cos से sin बनेगा और 38 से फॉर्मेशन होएगी 52 की, 90 माइनस 38। cos का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? sin 38 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 52, तो इससे sin 52 आएगा, और इससे sin cos से sin 52 से 38 sin 38, तो sin 52 sin 38, और ये प्लस का आएगा और ये माइनस का क्या है sin 38 इंटू sin 52, तो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का है, इसमें से ये लेस हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो अपन क्या करते हैं, टेकिंग LHS, इन दोनों टर्म को अपन चेंज नहीं करेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन चेंज नहीं करेंगे, सेपरेटली हमने ये टैग कर लिया cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। क्लियर?
इसको अपन चेंज करते हैं, कोस थीटा को राइट किया साइन 90 माइनस थीटा एंड थीटा इज 38, कोस थीटा को राइट किया साइन 90 माइनस थीटा एंड थीटा इज 52, ओके, माइनस साइन 38 एज इट इज, साइन 52 एज इट इज, ओके। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 38 52, साइन 90 माइनस 52 ये हो गया साइन 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52, ओके। अब इसको अपन एक बॉक्स में राइट कर लेंगे, एक ब्रैकेट में साइन 38 और माइनस, इसमें ये पहले राइट कर लो, ये बाद में राइट कर लो। मल्टीप्लाई में रिवर्स कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है और एडिशन में भी होता है, बट डिवाइडेशन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। साइन 52 फर्स्ट में राइट कर लिया, सेकंड में साइन 38, इसको ब्रैकेट में यूज कर लो। इस फैक्टर से, इस टर्म से ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल, जीरो, हेंस LHS इज इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और फॉर्मूला आपने ऑपरेट किया था यहाँ पे, कोस थीटा को आपने 2 टाइम क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा को आपने राइट किया साइन 90 माइनस थीटा, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हमने कर लिए। कोस 38 से साइन 52 बनेगा, कोस से साइन 52 से 38 बनेगा, ये प्लस के होंगे और सेम टर्म किसका है, माइनस का है, ओके। तो इनको चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को चेंज कर लिया, प्लस से माइनस डायरेक्ट कैंसिल हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, if tan 2a, question number 3, if tan 2a is equal cot a minus 18, where 2a is an acute angle, find the value of a, where 2a is an acute angle, यानी 2a की वैल्यू है वो 90 से बिलो होनी चाहिए, acute angle, find the value of a, find the value of a, okay, solution. Given that 2a is tan 2a is equal cot a minus 18, clear. We know that if trigonometric ratio are equal in both sides, then their angles will be equal. We know that if trigonometric ratio are equal in both sides, then their angles will be equal. अब tan से कोट बन जाए तो ये कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसको अपन चेंज कर लेते हैं, tan थीटा, ये टोटल थीटा होगा, tan थीटा को हमने राइट कर दिया, tan से कोट बन सकता है कोट 90 माइनस 2a, ओके। अब यहाँ पे वो सेकंड पैटर्न है वो फेल हो जाता कि tan 90 में से क्या लेस करेंगे 2a आई, तो यहाँ पे वो सेकंड जो पैटर्न हमने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाया था क्वेश्चन फर्स्ट के, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। ये फर्स्ट पैटर्न से ही क्वेश्चन हो सकता है, इज इक्वल कोट a माइनस 18, ओके। ये फॉर्मूला यूज किया tan थीटा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल कोट 90 माइनस थीटा, ओके। अब because trigonometric ratio are same, so
देयर एंगल्स विल बी सेम। 90 माइनस 2a, अब ये ब्रैकेट यूज करने की नीड नहीं है, ये कोट से कोट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना, a माइनस 18। और ये कैसे रिमूव होएगा, 90 माइनस 2a, ये ब्रैकेट इस कोट के लिए यूज कर रखा था, ये ट्रांसफर हो गया तो कोट इनवर्स बन जाएगा। और टोटल एंगल क्या बन जाएगा, ये इसका कोट इनवर्स का टोटल एंगल बन जाएगा, कोट a माइनस 18। क्लियर, कोट इनवर्स से कोट रिमूव हो गया तो a माइनस 18 रह गया और यहाँ पे 90 माइनस 2a। अब इन दिस इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल अननोन, इफ एनी इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल अननोन सो वी कैन फाइंड इट इजीली। अब a वाले टर्म को सेम साइड में और कांस्टेंट टर्म को सेम साइड में, तो ये a तो राइट साइड में है ही, ये माइनस 2a इधर जाएगा तो प्लस 2a हो गया, प्लस 2a, एंड दिस इज 90, माइनस का टर्म है तो प्लस का 18, ये हो गया 1a और 2a 3a, सेम टर्म है, दीज आर टर्म ऑफ a, और ये कांस्टेंट टर्म विल बी एड 108। a के मल्टीप्लाई में 3 है तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, कैरी 8, 3 6 जा, तो 36 वैल्यू आ गई a की, इट मीन्स a इज इक्वल क्या है 36। और कंडीशन क्या है, 2a एक्यूट एंगल है, इट मीन्स बिलो टू 90 डिग्री, ओके, लेस देन 90 डिग्री। तो 2a करके देखेंगे, 36 का ट्वाइस करेंगे 72, और 72 लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल ये 2a, ओके। ये अपने को जब आंसर आ जाए तो ये कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ये कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, तो ये आपने tan इधर कोट है तो tan से कोट बन जाएगा, कोट से कोट रिमूव हो जाएगा, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और उनमें वन वेरिएबल अननोन होगा a, और जो वेरिएबल टर्म है उनको सेम साइड में और कांस्टेंट टर्म को सेम साइड में, ओके। और फिर जो वन वेरिएबल है, इफ वन वेरिएबल अननोन इन एनी इक्वेशन सो वी कैन फाइंड इट इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan a is equal cot b, then prove that a plus b is equal 90, a plus b is equal 90। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, गिवन दैट tan a is equal tan b, यहाँ पे भी एक गिवन कर देना, गिवन दैट, ओके। तो गिवन दैट tan a is equal tan b, सॉरी cot b, अब tan से क्या बन सकता है, कोट से ये कोट रिमूव हो जाएगा, तो tan a को इसको अपन चेंज कर लेंगे, इसको राइट कर देंगे tan थीटा इज इक्वल कोट 90 माइनस थीटा, एंड थीटा इज एंगल a इज इक्वल कोट b। कौन सा फॉर्मूला ऑपरेट किया हमने, tan थीटा इज इक्वल कोट 90 माइनस थीटा, ओके, और थीटा की वैल्यू है a। तो इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम इन बोथ साइड देन देयर एंगल्स विल बी इक्वल। 90 माइनस a इज इक्वल क्या आएगा b, ओके। ये कोट से कोट रिमूव कैसे होता है, इस स्टेप में आप सीन करोगे। 90 माइनस a ये ट्रांसफर हो गया तो कोट इनवर्स बन गया, और इसका एंगल क्या हो गया कोट b, कोट इनवर्स से कोट रिमूव हो गया, ओके। तो 90 माइनस a इज इक्वल b, ओनली b बच गया। नाउ a को इस साइड में अपन ट्रांसफर कर देंगे, 90 इज इक्वल b, माइनस का है तो प्लस का है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन इसको और करके अपन क्या राइट कर सकते हैं, 90 इज इक्वल b प्लस a है, तो b प्लस a या a प्लस b एक ही बात है, तो a प्लस b इज इक्वल क्या हो गया 90, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ओके।
तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। और 5th क्वेश्चन इज if sec 4a, question number 5th, if sec 4a is equal cosec a minus 20, cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, where 4a is an acute एंगल, ये कंडीशन है। ये जब आंसर आए तो चेक कर लेना भी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो सॉल्यूशन वी given that sec 4a is equal cosec a minus 20। ओके, sec से cosec की फॉर्मेशन हो सकती है, cosec से ये cosec रिमूव हो जाएगा, तो 4a और a minus 20 इक्वल हो जाएगा, वहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो sec 4a को अपन ने चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो cosec sec थीटा इज इक्वल cosec 90 माइनस थीटा, और थीटा इज 4a इज इक्वल cosec a minus 20। ओके, इन दिस कंडीशन trigonometric ratio are same, so their angles will be same। ओके, 90 माइनस 4a इज इक्वल आएगा a minus 20, ये cosec ट्रांसफर हो जाएगा। इस स्टेप में आप देखो कैसे रिमूव होगा। 90 माइनस 4a, अब ब्रैकेट की नीड नहीं है, इसके लिए ब्रैकेट यूज कर रखा है, तो कोसेक इनवर्स, और इसका एंगल कौन बन जाएगा, कोसेक a माइनस 20, यहाँ पे बिग ब्रैकेट और ये बिग के अंदर स्मॉल ब्रैकेट, और ये आपने यूज किया फॉर्मूला कौन सा, बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा। ओके, अब ए वाले टर्म सेम साइड में और कांस्टेंट टर्म सेम साइड में बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये माइनस का 20 इधर आया लेफ्ट में, तो प्लस का 20 हो गया, और ए ये माइनस का 4a इधर आया तो प्लस का 4a हो गया, ये टोटली हो गया 5a, ये हो गया 110, a इज इक्वल आ गया 110 अपॉन 5, a इज इक्वल आ गया 22, 5 जा 5 1 जा, और ये 22, डिनोमिनेटर में 1 की नीड नहीं है, तो a इज इक्वल क्या आ गया, a इज इक्वल 22 अपना फाइनली आंसर आ गया। ओके, अब इस कंडीशन को चेक कर सकते हो, 4a, तो a का 4 टाइम क्या आएगा 88, और 88 भी क्या है, लेस देन 90, इट मीन्स एक्यूट एंगल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, important question of this exercise। क्वेश्चन नंबर 6, if, इसको आप मैं सेपरेटली करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, if a b and c, if a, sorry capital A, B and C
आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आर इंटीरियर angles of triangle ABC, then prove that sin B plus C by 2 is equal cos A by 2. ये टारगेट है सॉल्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एंगल B प्लस सी और A राइट में और B प्लस सी, मतलब ये एंगल सेट करना है आपको। ये लेफ्ट पार्ट सेट कर लो आप। ओके, तो कैसे करेंगे अपन? पहले एंगल सेट करेंगे, फिर साइन लेके आएंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस सी इज इक्वल 180, यू नो दैट। क्लियर? ये कौन से रूल से? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब B प्लस सी एक साइड में और अपने को तो B प्लस सी की नीड है, तो B प्लस सी को एक साइड में और एक का किया ट्रांसफर। ये एंगल सेट कर रहे हैं अपन, माइनस का ये हो गया। अब 2 है डिवाइड में, तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन की वैल्यू पे इफेक्ट हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स। अपन मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो B प्लस सी अपॉन 2 और 180 माइनस A बाई 2। यहाँ पे एक रूल फॉलो हो गया, above one term in numerator and in denominator only single term, then we can separately dividation। तो separately dividation की कंडीशन आ गई है, 180 by 2 माइनस एज इट इज A by 2। अब फ्रैक्शन के मिडल में क्या है? माइनस साइन है, एलसीएम लेंगे तो ये स्टेप इससे वापस आ जाएगा। सेपरेटली डिवाइडेशन की क्या कंडीशन होती है? इफ अबव वन टर्म इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर ओनली सिंगल टर्म, देन वी कैन सेपरेटली डिवाइडेशन ऑपरेशन। ओके, तो B प्लस सी बाई 2 एज इट इज, ये हो गया 180 बाई 2 90 माइनस A बाई 2। ओके, अब यहाँ पे साइन है, तो टेकिंग साइनी, साइनी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एब्रिविएशन क्या होता है? साइन। तो टेकिंग साइनी, अब जैसे रिमूव होता है साइन साइन, वैसे आ भी सकता है, उसका रिवर्स प्रोसेस है ये, टेकिंग साइनी बोथ साइड्स। ओके, तो साइन B प्लस सी बाई 2 और इज इक्वल कोस, सॉरी साइन लेना है, साइन B माइनस 90 माइनस A बाई 2। ओके, अब साइन से साइन रिमूव हो जाएगा तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और एंगल्स इक्वल है तो बोथ साइड में अपन साइन साइन, इस टारगेट को सेट किया हमने, लेफ्ट को, राइट अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, तो साइन B प्लस सी बाई 2 आ गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं? कोस थीटा, एंड थीटा इज A बाई 2। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोस थीटा यूज किया, और लेफ्ट में क्या है? साइन B प्लस सी बाई 2। ओके, LHS इज इक्वल क्या आ गया? RHS। LHS इज इक्वल RHS, hence proved, hence proved। ये क्वेश्चन, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू 180, इस साइड में B प्लस C की नीड है, तो A का किया ट्रांसफर। अब 2 की नीड है, तो डिवाइड बाय 2 इन बोथ साइड्स, 2 का इसमें टोटली डिवाइडेशन होएगा। ओके, कंप्लीट में डिवाइडेशन हो गया।
यहाँ पे above one term in numerator and in denominator only single term, so we can separately dividation 180 upon 2 minus a by 2, 180 upon 2 क्या आ गया 90 minus a by 2। अब यहाँ पे साइन है तो बोथ साइड में क्या करेंगे साइन ही टैग करेंगे, टैगिंग साइन ही बोथ साइड्स, साइन b प्लस c by 2 एंड साइन एंगल हो गया 90 माइनस a by 2। ये फॉर्मूले की फॉर्मेशन होगी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा एंड थीटा इज a by 2। तो ये फॉर्मूला हमने शो कर दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 in terms of trigonometric ratio of angles, in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and angles between 0 and 45 degree, 0 degree and 45 degree। इट मीन्स ये अपने को कंडीशन गिवन है, तो इस टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल्स हैं उनको 0 और 45 के मिडिल में होनी चाहिए वो, तो ये दोनों ही क्या है बिग है, तो दोनों को ही क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में ये गिवन दैट बस कोस कुछ नहीं करना, साइन 67 प्लस कोस 75 हेयर, ये दोनों एंगल्स ही क्या है बिग है, तो इन एंगल्स को 0 और 45 के मिडल में चेंज करना है। तो साइन थीटा को क्या राइट करते हैं अपन कोस 90 माइनस थीटा इज 67 प्लस इसको भी चेंज करें, ये भी बिग है 45 से, तो कोस थीटा राइट किया साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये एंगल हो गया कोस 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 23 प्लस साइन 15 90 माइनस 75 15। हियर एंगल्स बिटवीन here angles of trigonometric ratio between 0 degree and 45 degree। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले आपने ऑपरेट किए हैं कौन से, ये राइट कर देना, इधर मैं शो कर देता हूँ। ये तो आपने किया साइन थीटा इज इक्वल कोस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा को राइट किया एंड कोस थीटा इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। ये आप ब्रैकेट में यहाँ पे यूज कर दो, यहाँ पे ऑपरेट किया है। ओके, तो इसको तो अपन ने क्या कर दिया कोस 90 माइनस थीटा, तो ये कोस 23 आ गया, कोस 75 को राइट कर दिया साइन 90 माइनस थीटा इज 75, 90 में 75 गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं उनको शॉर्ट करना है, बिटवीन 0 एंड 45 के मिडिल में करना है। ओके, तो एक्सरसाइज 8.3 इज कंप्लीट। ओके, थैंक्स।